हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSI या नेट 26 नवंबर 2020 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन हमारे पार्ट बी पार्ट सी में पूछे गए सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट बी में पूछा गया, क्वेश्चन आईडी है 531। लेट k be a positive integer, consider the differential equation dy by dt is equals to y raised to the power 5k by 5k plus 2 for t greater than 0, y of 0 is 0. Which of the following statement is true? The first one is it has unique solution which is continuously differentiable on open interval 0 to infinity. Second one is it has at most two solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity. Third one is it has infinitely many solutions which are continuously differentiable. And the fourth one is it has no continuously differentiable solution on interval 0 to infinity. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, that is dy by dt is equals to y raised to the power alpha, where alpha belongs to the open interval 0 to 1, and y of b equals to 0, where b belongs to r. Then differential equation has infinitely many continuous differentiable solution on 0 to infinity, on 0 to infinity. अब हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, 5k divided by 5k plus 2, where k is positive integer. So हमें पता है अगर k पॉजिटिव है तो 5k लेस देन होगा 5k प्लस 2 से। ओवरऑल 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2 हमारा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। एंड इस केस में हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है, सो b की वैल्यू इस केस में हमारे पास 0 है। सो यहाँ से बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. दिस implies that infinitely many solutions on 0 to infinity. अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड में है कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस व्हिच आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इन्फिनिटी, सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्ट बी में ही पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है इसकी 532। लेट y नॉट greater than 0, z नॉट greater than 0 and alpha greater than 1. Consider the following two differential equation dy by dt is equals to y raised to the power alpha for t greater than 0 and y of 0 is y naught. The second one is dz by dt is minus z raised to the power alpha for t greater than 0 and z of 0 is equals to z naught. We say that the solution to a differential equation exists globally if it exists for all t greater than 0. Which of the following statement is true? The first one is both star and double star have global solutions. Second one is none of star and double star have global solutions. Third one is there exists a global solution for star and there exists a t less than infinity such that limit as small t tends to capital T modulus of ZT is equals to plus infinity. And the fourth one is there exists a global solution for double star and there exists a t less than infinity such that limit t tends to capital T modulus of yt is equals to plus infinity. वन बाय वन हम दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार इक्वेशंस को देखते हैं। हमें स्टार इक्वेशन गिवन है dy by dt is y raised to the power alpha t greater than 0 and y of 0 equals to y naught. हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम पर्टिकुलरली कोई y नॉट z नॉट और अल्फा की वैल्यू कंसीडर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम जनरल वे में कर सकते हैं। हम जनरल तरीके से इसको फिलहाल सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy by y raised to the power alpha is dt. So y raised to the power minus alpha plus 1 divided by 1 minus alpha is equals to t plus c, where c is the constant of integration.
अब हमें इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, दैट इज y ऑफ 0 इज y0। t की वैल्यू जब 0 है तो हमारे पास हो जाएगा y0 रेज टू द पावर 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। सो यहाँ से y रेज टू द पावर 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू t प्लस y0 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। अब हम इस इक्वेशन को 1 माइनस एल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होगा y raised to the power 1 minus alpha into t plus y naught raised to the power 1 minus alpha। अब हम 1 माइनस अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, सो 1 माइनस अल्फा हमारा लेस देन 0 होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय वाई अल्फा माइनस 1, 1 minus alpha t plus y naught raised to the power 1 minus alpha। So यहाँ से imply हुआ y raised to the power alpha minus 1 is 1 divided by 1 minus alpha t plus y naught raised to the power 1 minus alpha। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 divided by 1 minus alpha t plus y naught raised to the power 1 minus alpha, इसकी होल पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस ऑफ 1। इफ अगर t की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाए, हम ये देखें कि ये जो सोल्यूशन y है एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ t नॉट इक्वल्स टू, और वी कैन से t इंटू t into 1 minus alpha not equals to minus y naught raised to the power 1 minus alpha। जब ये वाली क्वांटिटी हमारी इस टर्म के नेगेटिव के इक्वल नहीं होगी तब तक हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस implies that t not equals to minus y naught raised to the power 1 minus alpha divided by 1 minus alpha। हमें ये देखना है y naught हमें पॉजिटिव गिवन है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स 1 माइनस अल्फा लेस देन 0। इट मीन्स ये वाली क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ओवरऑल टी हमारा पॉजिटिव है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव टी ग्रेटर देन 0 सच दैट, ऐसा हमारा एक पॉजिटिव टी एग्जिस्ट किया जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सच दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जो ग्लोबल सोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है कि अगर सोल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हर t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पर एक t की वैल्यू होगी माइनस वाई नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसा हमारे पास t एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए सोल्यूशन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम स्टार गिवन है, स्टार डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हमारा ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमें सिमिलर वे में सेकंड हमें चेक करना है, सेकंड को हम वेरीफाई करते हैं। हमें सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dz by dt is minus z raised to the power alpha where alpha is greater than 1 and z of 0 is z naught। इस केस में हम चेक करते हैं dz divided by z raised to the power alpha dt। So z raised to the power 1 minus alpha divided by 1 minus alpha is minus t plus c। So ओवरऑल यहाँ से हमारे पास जब z एट 0 की वैल्यू हमें z नॉट गिवन है, इसका हम यूज करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी z नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सिमिलर वे में जैसे हमने स्टार के लिए सॉल्व किया वैसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय माइनस टी इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस z नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा होल पावर इज 1 बाय अल्फा माइनस 1। अब
सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब चाहे t की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो जाए, t की वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। ओवरऑल क्वांटिटी कैसी रहेगी हमारी? पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। हमारे पास ऐसा कोई भी t एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। क्योंकि अब हमारे पास अगर इसको प्रॉब्लम कहीं होगी तो कहाँ पर होगी? -t/1 - अल्फा इक्वल हो जाए z0 रेज टू द पावर 1 - अल्फा, और वी कैन से नेगेटिव ऑफ दिस। अगर ये इसका नेगेटिव हो जाए तो, बट हमारे पास t पॉजिटिव है, 1 - अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव लगने से ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव हो गई। ये दोनों हमारी इक्वल हो ही नहीं सकती। इट मींस ऐसा कोई टी एग्जिस्ट नहीं किया जिसके लिए सॉल्यूशन हमारा डिफाइन ना करे। इट मींस जो प्रॉब्लम सेकंड है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है। सो सेकेंड ऑप्शन में गिवन है कि किसी के लिए भी ग्लोबली सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हुआ। थर्ड, देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर स्टार। थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ क्योंकि स्टार प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर डबल स्टार। यहाँ तक हमारा करेक्ट है। देन देयर एग्जिस्ट अ टी लेस देन इंफिनिटी सच दैट लिमिट मॉडुलस ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी। ये अभी हमने जब प्रॉब्लम स्टार को सॉल्व किया तो हमारे पास एक ऐसा टी एग्जिस्ट किया जिसके लिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 581। क्वेश्चन हमारा एसएलपी पर बेस्ड है। द सॉल्यूशन 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0 फॉर x belongs to open interval 0 to pi, y of 0 is 0, y of pi is 0, has a non-trivial solution y is equals to 0. It also has a non-trivial solution for no value of lambda, lambda is equals to 1. Third one is lambda is equals to n square, and the fourth one is lambda less than equals to 0. इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। सो गिवन है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इज 0, y ऑफ पाई इज 0। हमें इस प्रॉब्लम के लिए तीन केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज नेगेटिव एंड लैम्डा इज पॉजिटिव। सो केस फर्स्ट इज लैम्डा इज 0। जब लैम्डा की वैल्यू 0 है तो y डबल डैश हमारा 0 होगा। यहाँ से y ऑफ x होगा c1x प्लस c2। जब y हमारा c1x प्लस c2 होगा, y ऑफ 0 इज 0, यहाँ से इम्प्लाई हुआ c2 इज 0। नेक्स्ट y ऑफ पाई इज 0, दिस इम्प्लाइज दैट c1 पाई इज 0, बट पाई हमारा 0 नहीं हो सकता तो c1 को 0 होना पड़ेगा। अगर c1 c2 दोनों ही 0 हो गए तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। बट नॉन ट्रिवियल की बात की गई है तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई है, यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव की बात की गई है। सो केस सेकंड हम अगर नेगेटिव के लिए डिस्कस करें, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से भी इनकरेक्ट होगा। बाकी हम लेमडा नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब लेमडा हमारा नेगेटिव होगा तो लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो, क्योंकि अगर म्यू जीरो हुआ तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेमडा इज इक्वल्स टू 0 का केस। सो हेयर म्यू मस्ट बी नॉन जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन होगी y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। यहाँ से m की वैल्यू आई प्लस माइनस म्यू। तो जो सोल्यूशन है y ऑफ x वो होगा c1 e रेज टू द पावर म्यू x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू x। y ऑफ 0 इज 0, यहाँ से इम्प्लाई हुआ c1 प्लस c2 इज 0। नेक्स्ट कंडीशन है y ऑफ पाई इज 0, सो c1 e रेज टू द पावर म्यू पाई
प्लस C2 e raised to the power minus mu pi is 0। यहां से हमने इम्प्लाई किया C2 is माइनस ऑफ 7। इस रिलेशन का यूज किया हमने इस इक्वेशन में, तो C1 कॉमन निकाल लिया, e raised to the power mu pi minus e raised to the power minus mu pi is 0। ये वाला फैक्टर हमारा नॉन जीरो होगा। जब ये फैक्टर नॉन जीरो होगा तो C1 को जीरो होना पड़ेगा। अगर C1 जीरो हुआ तो बाय दिस रिलेशन C2 जीरो हो जाएगा। C1 एंड C2 दोनों जीरो हो गए तो यहाँ से y ऑफ x जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि जब लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है तो भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट किया। तो अब हमें निकालना होगा लेमडा जब पॉजिटिव हो जाए। जब लैम्डा पॉजिटिव हो जाए इट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर वेयर म्यू मस्ट बी नॉन जीरो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज जीरो। एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस म्यू आयोटा एंड जो सोल्यूशन होगा वो होगा C1 cos ऑफ म्यू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ म्यू एक्स। सो y of 0 is 0। यहाँ से imply होगा C1 is 0। Next is y of pi is 0। This implies that C2 sin mu pi is 0। C2 for non-trivial solution। अगर हमें non-trivial solution की existence दिखानी है तो C2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा। जब C2 नॉन जीरो होगा तो sin mu pi equals to 0। यहाँ हो जाएगा sin n pi where n belongs to z minus singleton 0। हमने जीरो को इसलिए हटाया क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो हो गई, अगर हम पहले कंपेयर करें म्यू पाई इक्वल्स टू एन पाई, म्यू इक्वल्स टू एन, अगर n की वैल्यू जीरो हुई म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट हम कंसीडर करके चले हैं कि म्यू हमारा नॉन जीरो हो। जब म्यू की वैल्यू एन स्क्वायर है तो लेमडा की वैल्यू क्या है, म्यू स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर। अगर लेमडा की वैल्यू एन स्क्वायर है तो सोल्यूशन हमारा नॉन ट्रिवियल होगा वेयर n बिलोंग्स टू n। अब सेकेंड ऑप्शन में n की वैल्यू 1, दैट इज, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके लिए भी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, सो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है लेमडा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बट n इज ग्रेटर देन 1। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ क्योंकि हमारे पास ऐसी लैम्डा एग्जिस्ट कर गए जिसके लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 582। Let A be enclosed in matrix with the distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda n with corresponding linearly independent eigenvectors v1, v2, vn. Then the non-homogeneous differential equation x dash is equals to axt plus e raised to the power lambda 1 t v1। हमें बताना है कि इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। अगर जो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे वो हर ए के लिए एग्जिस्ट करेंगे जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर हम ए को 1x1 की मैट्रिक्स कंसीडर कर लें जिसमें एलिमेंट भी हमारा 1 है, तो फॉर एवरी नॉन जीरो v बिलोंग्स टू आर एन बिकम आइगन वेक्टर। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर जो Rn में बिलोंग कर रहा है वो आइगन वेक्टर बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1। इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू 1 आइगन वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर नॉन जीरो वेक्टर जो होगा वो आइगन वेक्टर बन जाएगा। तो अब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम हमारा क्या चेंज हुआ, x डैश इज इक्वल्स टू x प्लस एंड लैम्डा की वैल्यू बनाइए टी v। यहाँ पर हम v कंसीडर कर लें। अगर हम वेक्टर v को भी 1 ही कंसीडर कर लें तो हमारे पास इजी सॉल्वेबल इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज्ड टू द पावर माइनस ऑफ dt
दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस टी, एंड इस केस में हमारा सोल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू टी ई रेज टू द पावर टी प्लस सी ई रेज टू द पावर टी। अब हमें इसकी हेल्प से ऑप्शंस देखने हैं कैसे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। First option is does not have a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a for any vector a belongs to Rn। हमारा सोल्यूशन इस टाइप का है। फर्स्ट में बोला गया कि इस फॉर्म का सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि सोल्यूशन तो हमारा इस फॉर्म में है। सेकंड में बोला गया हैज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। Third, has a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a plus t e raised to the power lambda 1 t b for some vectors a b belongs to Rn। lambda 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, so e raised to the power t a वेक्टर प्लस t e raised to the power lambda 1 t b वेक्टर, सो हमारा इसी टाइप का ही सोल्यूशन आया है, सो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है कि डज नॉट हैव अ सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप, सो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बाय कंसीडरिंग दिस एग्जांपल। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे फर्स्ट एंड थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है इसके 583। कंसीडर द सॉल्यूशन y1। हमें ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स गिवन है, e raised to the power minus 3t, e raised to the power minus 3t 0, and y2 is defined as 0, e raised to the power minus 5t, e raised to the power minus 5t to the homogeneous linear system of differential equation star y dash t is equals to, ये हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है तो हमें यहाँ पर 3 LI सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, और वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है वो मिलकर बेसिस बनाएंगे लीनियर सॉल्यूशंस की। So, which of the following statements are true? The first one is y1 and y2 form a basis for the set of all solutions to start. Second one is y1 and y2 are linearly independent but do not form a basis for the set of all solutions to start. Third one is there exists another solution y3 such that y1, y2, y3 form a basis for the set of all solutions to the star. The fourth one is y1 and y2 are linearly dependent. अगर y1 और y2 कोई दो सॉल्यूशंस हैं, उनको अगर लीनियरली डिपेंडेंट बनना है तो y1 को y y1 को हम लिख सके c टाइम्स ऑफ y2, इट मींस देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट बिलोंग्स टू r। एक हमारे पास एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करे और वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट एग्जिस्ट करे जिसके लिए y1 इक्वल्स टू सी y2 अगर लिखा जाए तो हमारे पास y1 y2 एल डी हो जाएंगे, इट मींस लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट यहाँ से y1 और y2 को देखकर हमें ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा जिसमें हम y1 इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ y2 लिख पाए। यहाँ पर जो y1 और y2 गिवन है वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब जो गिवन सिस्टम है वो हमारा 3 क्रॉस 3 का है, 3 इक्वेशंस गिवन है, तो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और वो तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलकर बेसिस फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन सेट की। तो फर्स्ट ऑप्शन है y1 एंड y2 फॉर्म अ बेसिस, नहीं। सेकेंड वन है y1 एंड y2 आर li बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस, ये हमारा करेक्ट होगा। थर्ड वन इज देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 सच दैट y1 y2 y3 फॉर्म अ बेसिस फॉर सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू स्टार। यस, हमारे पास एक अनदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो y1 y2 y3 तीनों मिलकर सॉल्यूशन सेट की बेसिस बनाएंगे, सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।